آمدنی بذریعہ فوریکس مارکیٹ میں آپ کرنسیز کو بیچتے یا خریدتے ہیں۔ غیر ملکی ایکسچینج مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا بہت آسان ہے۔ اس ٹریڈ کے بنیادی اصول دیگر ٹریڈ کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ۔ چنانچہ اگر آپ کا ٹریڈنگ میں کوئی تجربہ ہے تو آپ اس کام کو زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ فوریکس ٹریڈنگ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہاں ایک کرنسی کا دوسری کرنسی کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے، اور اس توقع کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے کہ لازمی طور پر کسی ایک کرنسی کی پرائس میں کوئی تبدیلی رونما ہوگی۔ چنانچہ جو کرنسی آپ نے خریدی اس کی ویلیو بڑھے گی، یہی ٹریڈر کا ذاتی خیال ہوتا ہے جب وہ کرنسی خرید رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ٹریڈرز کوئی کرنسی خریدتے ہیں تو ان کا ذاتی خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی خریدی گئی کرنسی کی ویلیو میں اضافہ ہوگا، جس کو وہ فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ 10,000 یورو کی لاٹ یورو ڈالر خریدتے ہیں، اس کا ایکسچینج ریٹ 1.2900 ہے۔ 2 ہفتے بعد آپ ان 10,000 یورو کو فروخت کر دیتے ہیں 1.3200 کے ایکسچینج ریٹ پر، یعنی قیمت خرید 1.2900، قیمت فروخت 1.3200، منافع 1 یورو پر 0.03، ٹوٹل فروخت شدہ یورو 10,000، آپ کا ٹوٹل منافع ہوا $300۔ سارے ایکسچینج ریٹ ایک جیسے طریقے سے چیک ہوتے ہیں، یعنی ایک کرنسی کی ویلیو کو دوسری کرنسی کی ویلیو کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر USD CHF کے ایکسچینج ریٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایک CHF خریدنے کے لیے آپ کو کتنے USD کی ضرورت ہے، یا آپ کو ایک USD خریدنے کے لیے کتنے CHF کی ضرورت ہے۔ فوریکس کو کس طرح پڑھیں؟ کرنسی کو ہمیشہ پیئرز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر یا امریکی ڈالر ین وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیئرز کے حوالے سے جاننا بہت ساری مشکلوں سے بچا دیتا ہے، کیونکہ غیر ملکی ٹرانزیکشن یا ایکسچینج پیریڈ کے دوران آپ ایک ہی وقت میں ایک کرنسی خرید رہے ہوتے ہیں اور دوسری بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو یورو بمقابلہ امریکی ڈالر سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سلیش سے بائیں طرف جو کرنسی ہے وہ بیس کرنسی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس مثال میں یہ یورو ہے، اور دوسری کرنسی جو کہ دائیں طرف ہے اسے کاؤنٹر یا کوٹ کرنسی کہتے ہیں۔ اس مثال میں یہ ڈالر ہے۔ جب آپ کچھ خرید رہے ہوتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنی کوٹ کرنسی کی رقم ادا کریں گے تو آپ بیس کرنسی کا ایک یونٹ خرید سکیں گے۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے کہ آپ کو 1.35 امریکی ڈالر ایک یورو خریدنے کے لیے دینے پڑیں گے۔ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک بیس کرنسی کے یونٹ بیچنے سے کوٹ کرنسی کے کتنے یونٹ آپ کو ملیں گے۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے، آپ جب ایک یورو بیچیں گے تو آپ کو 1.35 امریکی ڈالر حاصل ہوں گے۔ بیس کرنسی دراصل اس کرنسی کی بنیاد ہوتی ہے جسے آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ اگر آپ یورو ڈالر خریدتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ بیس کرنسی خرید رہے ہیں اور کوٹ کرنسی بیچ رہے ہیں۔ انتہائی سادہ لفظوں میں یورو خرید رہے ہیں اور ڈالر بیچ رہے ہیں۔ اب آپ پیئر کو خرید سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹ کرنسی کے مقابلے میں بیس کرنسی کی قیمت بڑھے گی، اور آپ پیئر کو بیچ بھی سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹ کرنسی کے مقابلے میں بیس کرنسی کے ریٹ گر جائیں گے۔ پہلے آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا آپ کرنسی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، جس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ بیس کرنسی خریدیں گے اور کوٹ کرنسی بیچیں گے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ بیس کرنسی کی قیمت میں اضافہ ہو، تو پھر آپ اس کو زیادہ قیمت پر بیچ دیں۔ تجارتی اصطلاح میں یہ عمل گوئنگ لانگ کہلاتا ہے، یا پھر اسے لانگ پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ لانگ برابر ہے بائی کے۔ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، جس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ بیس کرنسی بیچنا چاہتے ہیں اور کوٹ کرنسی خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیس کرنسی کی قیمت گر جائے تاکہ آپ اس کو کم قیمت میں فروخت کر دیں۔ یہ شارٹ پوزیشن کہلاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے شارٹ برابر ہے سیل کے۔ بڈ آسک، فوریکس کے سارے کوٹس 2 قیمتوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یعنی آسک اینڈ بڈ۔ بڈ ہمیشہ آسک سے کم ہوتی ہے۔ بڈ وہ پرائس ہوتی ہے جس پر آپ کا بروکر بیس کرنسی کو کوٹ کرنسی کے تبادلے کے ساتھ خریدنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڈ وہ پرائس ہے جس پر آپ اپنا مال فروخت کریں گے۔
आस्क वो प्राइस होती है जिस पर आपका ब्रोकर कोट करेंसी के तबादले में बेस करेंसी को बेच रहा होता है। इसका मतलब ये कि आस्क प्राइस वो है जिस पर आप करेंसी खरीद सकते हैं। आस्क के लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, उसे ऑफर प्राइस भी कहते हैं। बिड और आस्क के दरमियान प्राइस के फर्क को आम लफ्जों में स्प्रेड के नाम से जाना जाता है। यूरो और अमेरिकी डॉलर के कोट में बिड प्राइस 1.3272 दिया गया है और आस्क प्राइस 1.3273 है। जरा देखिए कि ब्रोकर इसे ट्रेड करने के लिए आपके लिए कितना आसान बना देता है। अगर आप यूरो बेचना चाहते हैं तो आप सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और इस तरह आप 1.3272 के हिसाब से यूरो बेच सकेंगे। अगर आप यूरो खरीदना चाह रहे हैं तो बाय ऑप्शन को क्लिक कर दें। इस तरह आप 1.3273 के हिसाब से यूरो खरीद सकेंगे। आमदनी थोड़ी रकम कमाने का वक्त। यहाँ मिसालों के जरिए हम बुनियादी तज्जिया समझाएंगे। इससे हमें किसी मखसूस करेंसी पेयर को बेचने या खरीदने के बारे में कोई फैसला करने में मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। यूरो यूएसडी। इस मिसाल में यूरो को बतौर बेस करेंसी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि अमरीकी मईशत मजीद कमजोर होती चली जाएगी, जो कि अमरीकी डॉलर के लिए बहुत बुरा है, तो फिर आपको यूरो अमरीकी डॉलर खरीदना चाहिए। यानी यूरो को आप इस तवक्को के साथ खरीद रहे हैं कि उसकी कीमत अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको यकीन है कि अमरीकी मईशत मजबूत है और यूरो अमरीकी डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो जाएगा, तो आपको यूरो और अमरीकी डॉलर बेच देना चाहिए। आप यूरो बेचते वक्त ये तवक्को रखते हैं कि इसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिरेगी। यूएसडी जेपीवाई। इस मिसाल में अमरीकी डॉलर को बतौर बेस करेंसी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि जापानी गवर्नमेंट यन को कमजोर करने जा रही है और उसके पीछे उनका मकसद अपनी बरामदी इंडस्ट्री को तकवीयत पहुंचाना है, तो आप अमरीकी डॉलर और यन खरीद के इस पेयर को बढ़ाएंगे। ऐसा करने के बाद आप अमरीकी डॉलर इस तवक्को के साथ खरीदेंगे कि उसकी कीमत जापानी यन के मुकाबले में बढ़ जाएगी। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि जापानी इन्वेस्टर्स अमरीकी मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं और अपने अमरीकी डॉलर्स को यन में तब्दील करवा रहे हैं और उससे यकीनन अमरीकी डॉलर को नुकसान पहुंचेगा, तो आप यूएसडी जापानी यन बेचेंगे। यानी आप अपने डॉलर्स बेचेंगे और इस तवक्को के साथ कि डॉलर्स की कीमत यन के मुकाबले में गिर जाएगी। जीबीपी यूएसडी। इस मिसाल में ब्रिटिश पाउंड बेस करेंसी है और डॉलर कोट करेंसी है। अगर आप ये सोचते हैं कि बरतानवी मईशत बेहतरी की तरफ अपना सफर जारी रखेगी बनिस्बत अमरीकी माशी तरक्की के, तो फिर आप जीबीपी यूएसडी को खरीदेंगे। आप इस तवक्को के साथ पाउंड खरीदेंगे कि डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपको यकीन है कि बरतानवी मईशत बहुत सुस्त रवि का शिकार है जबकि अमरीकी मईशत बहुत मजबूत है, तो फिर आप जीबीपी यूएसडी को बेचेंगे। आप अपने पाउंड इस तवक्को के साथ बेच रहे हैं कि उसकी कीमतें डॉलर के मुकाबले में कम हो जाएंगी। यूएसडी सीएचएफ। इस मिसाल में अमेरिकी डॉलर बेस करेंसी है और स्विस फ्रैंक कोट करेंसी है। अगर आप ये सोचते हैं कि स्विस फ्रैंक की वैल्यू कम है, तो आप यूएसडी सीएचएफ को खरीदेंगे। आप इस तवक्को के साथ डॉलर खरीदेंगे कि उसकी कीमत स्विस फ्रैंक के मुकाबले में बढ़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में मंदी का रुझान है और मुस्तकबिल में उसका बुरा असर अमेरिकी मईशत पर पड़ेगा जिससे डॉलर कमजोर हो सकता है, तो आप यूएसडी सीएचएफ को बेचेंगे। आप अमेरिकी डॉलर बेचते हैं इस तवक्को के साथ कि स्विस फ्रैंक के मुकाबले में उसकी कीमत कम हो जाएगी। मार्जिन ट्रेडिंग। अगर आप किसी बड़े स्टोर पर जाते हैं और आप वहां से एक अंडा खरीदना चाहें, तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि आमतौर पर अंडे दर्जन के हिसाब से ही खरीदे जाते हैं, यानी 12 अंडों की लॉट ही ली जाती है। इस तरह फॉरेक्स के कारोबार में यह बिल्कुल फजूल और बचकाना बात है कि आप 1 यूरो बेचें या खरीदें। चुनांचे आमतौर पर ये लॉट्स की सूरत में खरीदे या बेचे जाते हैं। जैसे 1000 करेंसी के यूनिट्स, ये माइक्रो लॉट कहलाती है। 10,000 यूनिट्स ये मिनी है, या 1 लाख बतौर स्टैंडर्ड लॉट के लिए जाते हैं। ये आपके ब्रोकर पर मुनहसिर है और आपके अकाउंट की टाइप क्या है। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 यूरो खरीदने के लिए रकम नहीं है, तो क्या मैं ट्रेड कर सकता हूं? जी हां, आप मार्जिन ट्रेडिंग के साथ ऐसा कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग की जो टर्म है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप 1000 यूरो की लॉट खरीदना चाहते हैं और यूरो यूएसडी का रेट 1.33 है, यानी 1 यूरो लेने के लिए आपको
$1.33 देने पड़ेंगे। यानी आप 1000 यूरो USD की लॉट $26.6 में उठा सकते हैं अगर आपका अकाउंट 150 है तो। यानी $26.6 आप देंगे और बाकी के $1303.4 लिक्विडिटी प्रोवाइडर देगा। इसको इस तरह समझें कि ₹1 आप लगाएंगे और 49 रुपए लिक्विडिटी प्रोवाइडर लगाएगा। इस तरह आप बड़ी रकूम के लेन देन में हिस्सेदार बन जाते हैं और ये सारा अमल बड़ा सस्ता और तेज रफ्तार है। बहुत थोड़ी रकम के साथ आप मार्जिन ट्रेड की वजह से बड़ा काम कर सकते हैं। हम फिर से आपको इस बात की याद दहानी कराना चाहते हैं कि उलमा मार्जिन ट्रेड को हराम कहते हैं। इस मरहले पर हमारी वजाहत को गौर से सुनिए क्योंकि ये बहुत अहम नुकात की निशानदेही करते हैं। आपको यकीन है कि मार्केट्स में ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो ये इशारा देते हैं कि ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले में ऊपर जाएगा। अगर आप ब्रिटिश पाउंड USD की 1 लाख यूनिट की स्टैंडर्ड लॉट खरीदते हैं और ये खरीदारी ब्रिटिश पाउंड में 2% मार्जिन यानी 1.50 के साथ करते हैं, अब आप इस बात का इंतजार करेंगे कि कब एक्सचेंज रेट ऊपर जाए। जब आप 1 यूनिट ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकी डॉलर की लॉट खरीदते हैं और प्राइस 1.55 है तो आप 1 लाख पाउंड खरीद रहे हैं जिसकी मालियत $1,55,000 है। यानी 1 लाख यूनिट्स ऑफ GBP ज़रब 1.55। अगर मार्जिन की जरूरत 2% थी तो फिर $3,100 अमेरिकी डॉलर एक तरफ हो जाएंगे यानी आपके अकाउंट से एक तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। US डॉलर 1,55,000 का 2%। अब आप 1 लाख पाउंड्स को सिर्फ $3,500 के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। हम मार्जिन के बारे में मजीद गहराई के साथ बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इसका मरकजी ख्याल समझने के काबिल हो गए हैं कि ये किस तरह काम करता है। आपकी पेशिंगोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं और आप अब लॉट को बेचने का फैसला करते हैं और आप अपनी पोजीशन को 1.5550 पर बंद कर देते हैं। इस तरह आपने $500 कमाए। आइए इसको समझाते हैं। आपने जो लॉट खरीदी थी उसकी मालियत $1,55,000 थी। अब जबकि आप 1 लाख पाउंड को 1.5550 के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं तो आपके हाथ में $1,55,500 आएंगे। खरीदारी की मालियत 1,55,000 है। अब आप फरोख्त की मालियत 1,55,500 को मिना करेंगे तो आपको $500 हासिल होंगे जो कि खालिस नफा है। अब ब्रोकर आपके फरोख्त करने के बाद 3,500 आपके अकाउंट में डाल देगा और $1,51,500 लिक्विडिटी प्रोवाइडर को वापस कर देगा। $3,500 प्लस $1,51,500 बराबर है $1,55,500 के। यानी जब आप अपनी पोजीशन को बंद करने का फैसला करते हैं तो जो रकम आपकी हकीकी तौर पर ट्रेड शुरू करने से पहले होती है वो आपको तमाम तर नफे और नुकसान के साथ वापस मिल जाती है। नफा और नुकसान आपके अकाउंट में चले जाते हैं। यहां पर सबसे अच्छा क्या है? रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरक्की के साथ यहां पर कुछ ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडर्स को कस्टम लॉट्स की इजाजत देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको माइक्रो, मिनी या स्टैंडर्ड लॉट्स की जरूरत नहीं है। अगर 1542 आपका पसंदीदा नंबर है तो आप कितने यूनिट अपनी ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस तरह भी लॉट खरीद सकते हैं। रोल ओवर, तकरीबन सारे ब्रोकर्स इस्लामिक फॉरेक्स अकाउंट ऑफर करते हैं जिसमें वो रोल ओवर नहीं लगाते, यानी न लेते हैं न देते हैं। हम आपको ये मशवरा देंगे कि अपना अकाउंट इस्लामिक करा लें ताकि रोल ओवर न देना पड़े। लेकिन होता क्या है इसको समझ लें। रोल ओवर वो सूद है जो आपको देना पड़ता है अपने कर्ज ली हुई रकम पर। यह रोल ओवर हर दिन के इख्तिताम पर ब्रोकर आपके कर्ज ली हुई रकम पर चार्ज करता है। दिन का इख्तिताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे होता है। हर करेंसी ट्रेड जो आप लेते हैं वो एक करेंसी का कर्जा दूसरी करेंसी खरीदने के लिए लेना पड़ता है। इंटरेस्ट रोल ओवर के चार्जेस यानी इंटरेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का हिस्सा है। इंटरेस्ट रेट इस करेंसी पर अदा किए जाते हैं जिसको कर्ज पर लेकर खरीदा गया हो। अगर आप ऐसी करेंसी खरीद रहे हैं जिसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हैं, यानी आप हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी को कर्ज के तौर पर ले रहे हैं, तो फिर अगर नेट इंटरेस्ट रेट के दरमियान फर्क है तो आप सूद हासिल करेंगे। मुखालिफाना तौर पर अगर इंटरेस्ट रेट के दरमियान मनफी फर्क है तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अपने ब्रोकर या डीलर से इसके बारे में मखसूस तफसीलात हासिल कीजिए जिनमें रोल ओवर के बारे में भी सब कुछ बताया गया हो।
یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے ریٹیل بروکرز اپنے رول اوورز ریٹس کو انٹر بینک لینڈنگ ریٹس کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے بروکر سے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے۔ یہاں پر ایک چارٹ دیا جا رہا ہے جس کی مدد سے آپ کو بڑی کرنسیز کے درمیان انٹرسٹ ریٹ کا فرق سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ 2013 کے مطابق مختلف ممالک کی شرح سود۔ بعد میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح مختلف کرنسیز کے درمیان فرق کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کے لیے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ہر بات جان جائیں۔ مارجن ٹریڈنگ کی جو